Welcome again. In this video, basically we discussed about what is atom, what is molecule and what is valency. तो यहाँ पे basically हम लोग तीन टॉपिक यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में. So सबसे पहले what is atom? So all of you know that basically matter on earth are found in basically three different forms or three different chemical forms. These are elements, compounds and mixture. So at first, what is element? Elements are those pure substance which cannot be further divided into smaller particles or smaller substances by any physical or chemical method. If you apply any type of physical or chemical method, आप कोई भी physical और chemical method आप apply कर लीजिए, लेकिन इस element को अब और ज़्यादा simpler substance में हम convert नहीं कर सकते. तो वैसे substances elements के रूप में term किए जाते हैं. जैसे elements के रूप में अगर मैं iron की बात करता हूँ तो iron हो गया, copper हो गया, हमारा oxygen है. So all of these are elements. क्योंकि आप आयरन का टुकड़ा आप कहीं से भी अगर लेकर आएंगे तो उनके जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के ही जैसे होंगे. और जो आयरन जिसका कि सिंबल हमारा Fe होगा और इसके स्मॉलर पार्टिकल को एक एटम से आप रिप्रेजेंट, एक एटम के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो. इट मींस स्मॉलर पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स आर बेसिकली वन एटम एंड these atoms combined together either by strong forces or by some weak forces. तो अगर वो strong forces से अगर attached हैं तो वैसे केस में वो एलिमेंट मेटल के रूप में माना जाएगा और उस एलिमेंट को आप मेटल के रूप में आप एक्सेप्ट करेंगे. और अगर उस दो एटम्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो वैसे केस में वो नॉन मेटल का फॉर्मेशन करेगा. यानी एलिमेंट्स को भी आप आगे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. And the smaller particle of element is atom. और जो element का हमारा सबसे smaller particle होगा, क्योंकि indivisible particle होगा, वो हमारा atom होगा. वहीं पे जितने भी atoms, जितने भी periodic table में basically हमारे elements हैं, तो इन सारे elements की एक tendency होती है अपने आप को inert gas configuration को attain करना. यानी वो खुद सारे ही elements, जो भी elements हैं, वो सभी inert gas configuration को attain करना चाहते हैं. और उस inert gas configuration को attain करने के लिए वो एटम या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर लूज करता है या फिर शेयर करता है. वो तीनों ही तरह के काम को कर सकता है और ये तीन में से कोई भी एक एक्टिविटी वो पूरा करता है और दो एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली ज्वाइंट हो जाते हैं जिससे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है. It means compounds are also pure substance which are formed by chemical mixing of two or more than two elements. अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर एक दूसरे के साथ केमिकली अगर बाउंडेड हो रहे हैं, chemically bonding it means either they lose electrons or gain electron or share their electron and form one strong force of attraction between two atoms. That force of attraction is known as chemical bonding. तो उसी force of attraction को हम chemical bonding बोलते हैं. जैसे hydrogen is one atom of hydrogen element. Similarly, oxygen is one atom of oxygen element. When these two atoms, hydrogen and oxygen, combine together by chemical forces, then one molecule is formed. This is known as water or H2O. So in water molecule, actually one atom of oxygen joined with two atoms of hydrogen. तो यहाँ पे जो हमारा एक ऑक्सीजन है वो दो अलग अलग हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट हुआ है और यहाँ पर जो बॉन्डिंग है ये कंप्लीटली एक केमिकल बॉन्डिंग है. तो केमिकल बॉन्डिंग होने के कारण जो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, that product is water and that product is termed as compound and the smaller particle of compound is known as molecules. जो smaller particles होंगे उसी compound को उनको हम molecules बोलते हैं. and अगर आप इन molecules को अगर आप break down करना चाहते हो तो आप इनको simple mechanical method से आप नहीं break कर सकते. आप जब भी इनको break करेंगे तो कुछ एक chemical method apply करना होगा. Another example like calcium, carbon, oxygen, all of these are different elements. And when these different elements combine together by some chemical forces, then they form calcium carbonate, CaCO3. So this one is one molecule of calcium carbonate. This one is one molecule of calcium carbonate. One molecule.
So CaCO3 is one molecule, whereas Ca is one atom, C is another atom, and 3 atom of oxygen. So we can say that in one molecule of calcium carbonate, one atom of calcium, one atom of carbon, and 3 atoms of hydrogen are involved. यानी अगर हमारा एक मॉलिक्यूल अगर है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसमें एक एटम हमारा कैल्शियम का है, एक एटम हमारा कार्बन का है, और 3 एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। तो जब भी एलिमेंट्स के स्मॉलर पार्टिकल्स एटम्स जब एक दूसरे के साथ जब भी केमिकली अगर बाउंडेड होंगे, तो वैसे केस में कैल्शियम कार्बोनेट और इस तरह के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन वो करेंगे। इट मींस अ मॉलिक्यूल इज बेसिकली अ बंच ऑफ एटम्स। तो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो एक बंच ऑफ एटम होगा, जिस गुच्छे में कि बहुत सारे एटम्स अवेलेबल होंगे, लेकिन कंडीशन होगा कि वो एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली बाउंडेड हों। केमिकली बाउंडेड, मैं बार बार बोलता हूँ कि केमिकली बाउंडेड होने का मतलब हुआ कि these atoms either gain electron or lose electron or share their electron. Like in case of water, तो हम वाटर को ही सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि वाटर। So all of you know that कि hydrogen have 1 electron in their valence orbit. Similarly, oxygen have 6 electrons in their valence orbit, and hydrogen have again 1 electron in their valence orbit. तो हमने कहा कि each element or each atom want to complete their duplet or octet and attain the electronic configuration of inert gas or noble gas. Noble gas or inert gas are basically group 18th element. These are helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. So these are group 18 elements, and these elements are also known as zero group element because their valency is zero, and their valency is zero because there is no combining capacity in these elements. तो इन elements के पास कोई combining capacity नहीं होती है, ये किसी के साथ भी combine नहीं हो सकते। इसका कारण है कि इन elements का या तो duplet complete है या फिर octet complete है। Duplet and octet it means कि their valence orbit consists either 2 electrons or 8 electrons, and when one atom consists either 2 electrons or 8 electrons in their valence orbit, then such atoms or such elements are chemically inactive. तो जैसे ही वो उसका ऑक्टेट पूरा होगा या फिर ड्यूप्लेट पूरा होगा, तो वैसे केस में वो केमिकली इनएक्टिव हो जाएगा, जैसा कि ये सारे गैसेस इनएक्टिव गैसेस हैं। इन गैसों को इनर्ट गैस या नोबल गैस बोला जाता है, और ये जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोले जाते हैं। इनको ग्रुप पीरियोडिक टेबल में 18th नंबर ग्रुप में इनको रखा गया है। साथ ही साथ इन गैसों को सबसे पहले रामसे एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ही सबसे पहले हमारे एयर में से इनको एक्सट्रैक्ट किया था। इनका परसेंटेज कंपोजिशन हमारे एयर में बहुत लिटिल होता है, लेस देन 1% होता है ये, यानी 1% से भी कम में ये सारे इनर्ट गैसेस अवेलेबल होते हैं। लेकिन कोई भी एलिमेंट वो हमेशा each and every element of periodic table except these elements which are belongs to group number 18. So except these elements, all elements belongs to periodic table wants to complete their either duplet or octet and attain the electronic configuration of these noble gases. तो कोई भी एटम है वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है या फिर शेयर करता है और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट, गेन या शेयर करता है, उसी को हम उसके वैलेंसी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, लूज और शेयरिंग एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज वैलेंसी ऑफ एन एटम। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, जो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी, उसी को हम उसका वैलेंसी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो मैंने वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिया था, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हाइड्रोजन जस्ट कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हमारा शेयर कर रहा है। वैसे ही दिस वन हाइड्रोजन आल्सो कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट एंड योर ऑक्सीजन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, बिकॉज ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 5 और 6 पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन वाला शेयर कर लिया। तो इस केस में आप देखोगे कि हाइड्रोजन हमारा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन से और अपने ड्यूप्लेट को पूरा कर रहा है, जो हमारा हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन 36 54 86। तो आप अगर इनमें किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हीलियम में तो 2 ही मिलेगा, 2 आएगा,
लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तो 2 and 8, सिमिलरली 2, 8, 8 एंड सो ऑन, आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर भी जो हमारा हाइड्रोजन है ये इस ड्यूप्लेट वाले ड्यूप्लेट को कंप्लीट करता है, और जो हमारा ऑक्सीजन है ये ऑक्टेट इसके कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा शेयर किया तो अब 2, 8 हो गया। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब ये 2, 8 हो गया, तो इसने नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन को एक्चुअली अटेंड किया है। तो कोई भी एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या लूज करते हैं या फिर शेयर करते हैं, और इससे उस एटम में एक कंबाइनिंग कैपेसिटी आती है, वो एक नंबर ऑफ एटम्स को अपने साथ होल्ड कर सकता है, एंड दैट कंबाइनिंग कैपेसिटी इज टर्म्ड एज वैलेंसी ऑफ एन एटम। लाइक in this example, oxygen will hold 2 atoms of hydrogen. So here oxygen is one atom and oxygen hold 2 different atoms of hydrogen. So combining capacity of oxygen is here 2 because it can easily hold 2 atoms of hydrogen. इन प्रीवियस टाइम जब स्टार्टिंग टाइम था केमिस्ट्री का, उस समय इसको एक्सप्लेन किया गया था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद एन एलिमेंट इज नोन एज देयर वैलेंसी, यानी एक एटम के साथ जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हो सकते हैं उनको उनके वैलेंसी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को होल्ड कर रहा है, इट मींस वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 हियर। सिमिलरली इन केस ऑफ अमोनिया NH3, here nitrogen hold 3 atoms of hydrogen, it means valency of nitrogen is 3 here. Similarly in case of CH4 methane, carbon hold 4 atoms of hydrogen, it means valency of carbon is here 4, or we can say that in this molecule holding capacity of carbon is 4 because it will hold 4 atoms of hydrogen, वो अपने चारों तरफ 4 atoms of hydrogen को कंसिस्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। वैसे ही अगर हम अमोनिया की बात करते हैं NH3, जैसा मैंने अभी कहा, सो NH3 की अगर हम बात करें, सो नाइट्रोजन हियर एटॉमिक नंबर इज 7 एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 5, इट मींस वैलेंस ऑर्बिट ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स, सो नाइट्रोजन with their 2, 3, 4 and 5 electrons. Here nitrogen complete their octet and also hydrogen complete their duplet during formation of NH3. How? Just look at here. Hydrogen which have single electron in their valence orbit, hydrogen have single electrons in their valence orbit, and hydrogen just complete their duplet. In all these cases hydrogen becomes stable because it just attains the electronic configuration of helium, so it becomes stable. Now nitrogen 2 to 4 to 6 and to 8, and nitrogen complete their octet, it means their configuration becomes 2, 8, it means nitrogen also attains the electronic configuration of neon. So each and every element which react together and form a new complex or new compound, they must attain the nearest noble gas configuration during reactions. और हम ऐसा कह सकते हैं कि एक एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने और स्टेबल होने के लिए ही रिएक्शन करता है। अगर उसको अटेंड नहीं करना रहता कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो वैसे केस में वो ना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना गेन करता और ना शेयर करता, और वैसे केस में किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था। अब है क्या कि जो ये बॉन्डिंग्स होते हैं जो कि 2 एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। दीज आर आयोनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्डिंग। Ionic bonding, it means ionic bondings are those which are formed by gain and loss of electron. It means 2 atoms, just one atom lose their electron, another atom gain these electrons, and जो एटम के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज जिस एटम के ऊपर की नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों ही ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं, जिससे कि आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होती हैं। एग्जांपल के रूप में
अगर मैं एक सिंपल कंपाउंड जो कि वेल नॉन कंपाउंड है हमारे और आपके लिए, सोडियम क्लोराइड. सो सोडियम क्लोराइड, ऑल ऑफ यू नो अबाउट सोडियम क्लोराइड इज बेसिकली व्हाट टेबल सॉल्ट, जो कि हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट के फॉर्म में. तो Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281 and atomic number of chlorine is 17 and their electronic configuration is 287. So यहाँ पे जो सोडियम एटम है इसके पास दो रास्ते हैं, या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो एक है और 7 ले लेगा तो 8 हो जाएगा, या फिर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो डोनेट कर देगा तो डायरेक्ट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस ऑर्बिट आपका बन जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो ये पॉसिबल नहीं है कि सोडियम को कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वैसे केस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा सोडियम को, जितना कि एनर्जी सोडियम के पास अवेलेबल नहीं है. यानी सोडियम यहाँ पे अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और सोडियम जैसे अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये Na+ में कन्वर्ट होगा. जो ये लूजेंट इलेक्ट्रॉन होगा ये क्लोरीन आपका, चूंकि इसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 288 वाले कॉन्फ़िगरेशन यानी आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, because it is not easy for chlorine that it just release their 7 electron. ये इजी नहीं है क्लोरीन के लिए वो 7 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके और अपना ऑपरेट पूरा कर ले. तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे. तो हमारा जो क्लोरीन है वो उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है एंड Cl- में फॉर्म करता है. एंड Na+ and Cl- these two are oppositely charged ion comes in contact and by strong force of electrostatic force of attraction ionic compounds are formed. और जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स हमने NH3 का देखा था वो एक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स था, क्योंकि वहां पे आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे थे. तो जो बॉन्डिंग्स बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग्स आर बेसिकली डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल. तो एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं. एंड दिस केमिकल बॉन्डिंग आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स: आयोनिक बॉन्डिंग, covalent bonding and metallic bonding. So ionic bonding is explained like this, whereas covalent bonding, like in case of CH4, carbon have 4 electron in their valence orbit. We know that because atomic number of carbon is 6 and their electronic configuration is 2 4. So their valence orbit consists 4 electron in their valence orbit. Now hydrogen have single electron in their valence orbit. All of you know about it. So in this case each hydrogen complete their duplet and carbon complete their octet. So such type of bondings are termed as covalent bonding. So this one is ionic bonding and this one is explanation of ionic bonding and this one is explanation of covalent bonding. So in short we can say that combining capacity of an element is known as their valency, or number of hydrogen atom attached with an element is also known as their valency. Like in case of methane, here carbon hold 4 different atoms of hydrogen. It means valency of carbon is 4 here because their combining capacity is 4. So वैलेंसी के बाद अगर हम बात करें वेरिएबल वैलेंसी की, तो कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में आते हैं. पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक मतलब पीरियोडिक टेबल का जो ऊपर का जो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके एस ब्लॉक है. ग्रुप नंबर 13 टू 18 बी ब्लॉक है एंड ग्रुप नंबर 3 टू 12 ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. तो डी ब्लॉक के कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे आयरन है, हमारा कॉपर है, जो कि एक से ज्यादा वैलेंसी को शो करता है. जैसे आयरन हमारा 2 वैलेंसी भी शो करता है और 3 वैलेंसी भी शो करता है, इसीलिए वो FeO का भी फॉर्मेशन करेगा एंड Fe2O3 का भी फॉर्मेशन करेगा. उसी तरह से कॉपर भी हमारा Cu2O का भी फॉर्मेशन करता है एंड CuO का भी फॉर्मेशन करता है. तो ऐसे कुछ एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि एक से ज्यादा वैलेंसीज को शो करते हैं और वैसे वैलेंसी को हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं. वेरिएबल वैलेंसी में दोज एलिमेंट which will show more than one valencies like copper, like iron. Basically these are d block elements because d block elements have partially filled d orbital, so they can easily show 2 or more than 2 different types of valencies.